یہ ہمیں منظور نہیں ہے، چاہے ہمیں اپنی جانیں بھی قربان کیوں نہ کرنے پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک بھی ہے، تو جمعۃ المبارک کے حوالے سے بھی جمعہ کی تمام تر برکتیں اور فضیلتیں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں۔ آج ہم اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت پورا پاکستان ہی کشمیر ایشو کے حوالے سے بات چیت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جتنے بھی نیوز چینلز ہیں یا جہاں بھی دو چار لوگ ہم کھڑے ہوتے ہیں یا آپس میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ لازمی کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو ملکی حالات ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ آج وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے پوری قوم کے لیے جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ 12 بجے سے لے کے 12:30 بجے تک درخواست کی گئی ہے پاکستانیوں سے کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں اور کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں۔ جتنی بھی ٹریفک جو ہے یہ 12 سے 12:30 تک جیم ہو جائے گی، اور سگنلز جو ہیں وہ ریڈ ہوں گے۔ وزیر ریلوے کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ 138 جو ٹرینیں ہیں ہماری وہ 1 منٹ کے لیے وہ بھی آج رک جائیں گی، اور جگہ جگہ کشمیر ایشو کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی کہ کیا ہم جو صحیح پیغام ہے، جو ایک مقصد ہے کشمیریوں پہ جو انسانی حقوق کی جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس کو کیا پاکستان سے باہر وہ صحیح طرح سے پہنچایا جا رہا ہے۔ پاکستان سے باہر جو ہے دوسرا عالمی میڈیا جو ہے اور جو عالمی سطح پہ وہ ساری جو اصل پکچر ہے وہ دکھائی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں جو اینٹی بیلسٹک غزنوی میزائل کے حوالے سے، اس کا کل کامیاب تجربہ کیا گیا۔ لائن آف کنٹرول پہ غیر ملکی صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے شہریوں سے، اور اس کے علاوہ وہاں کی پوری انہیں رپورٹ دی گئی ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کس طرح انڈیا جو ہے خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ کرتارپور صاحب کے حوالے سے بھی تھوڑی سی پیش رفت ہوئی ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کی ایک نئی مثالیں قائم کر رہا ہے بھارت، اس حوالے سے بات کریں گے اپنے پروگرام میں آج ہم۔ اور کشمیریوں کو اتنی بڑی تعداد میں قید کر لیا گیا ہے وہاں پہ کہ جیلیں جو ہیں وہ بھر چکی ہیں، اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ اس بارے میں بات ہوگی۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایک صحافی جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر صحافت کے جو فرائض ہے وہ سر انجام دے چکی ہیں، سبین آغا صاحبہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تھینک یو، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور میرے ساتھ جو دوسرے مہمان موجود ہیں یہ تجزیہ کار ہیں میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی جو آج کی گفتگو ہے اس کا آغاز کریں، ہمارے پاس ایک رپورٹ موجود ہے، آئیے چل کے پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور بھارتی سختیاں 25ویں روز بھی جاری، لاکھوں کشمیری گھروں میں قید، خوراک کی کمی کے باعث فاقہ کشی پر مجبور۔ یورپی میڈیا مودی کا موازنہ جرمنی کے ہٹلر سے کرتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دنیا میں انسانوں کا بڑا قتل عام 9 نومبر 1938 میں ہٹلر اور جرمن نازیوں نے 2 لاکھ افراد قتل کر کے کیا۔ 2002 میں اس وقت گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر کے اس واقعے کو دہرایا۔
हिटलर की तरह हजारों मुसलमानों को जिंदा जला दिया। मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में भी वही मॉडल अपनाया। न सिर्फ कश्मीर में हजारों मुसलमानों को कत्ल किया गया, बल्कि अब वादी को खुली जेल में तब्दील करके लाखों कश्मीरियों को भूखा मारा जा रहा है। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी। आइए इस हवाले से अपने मेहमानों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबीन आगा साहिबा, आज हर पाकिस्तानी वो बड़े जज्बे के साथ और कश्मीरियों के साथ जो है वो एक यकजहती का इजहार करने के लिए 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक घर से बाहर निकलेगा, और उसके साथ साथ जो है वो मतलब वो क्या एक पैगाम है जो वो इससे हम दुनिया को पहुंचाने में कामयाब होंगे, और इससे कश्मीरियों को किस हद तक फ़ायदा पहुंच सकता है, या ये जो एक कॉज़ है, जो एक मुहिम है, इसमें कितनी पेशरफ्त होगी, इस हवाले से कुछ बताइए। फ़हीम, हमें सबसे पहले तो अपनी अप्रोच को बहुत प्रैक्टिकल रखने की ज़रूरत है। ये जो प्रोटेस्ट कॉल दी गई है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, ये सिंबॉलिक इसकी अहमियत तो ज़रूर होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमली तौर पर मुझे इसका कोई भी इम्पैक्ट फार रीचिंग इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या इंडिया के ऊपर होता हुआ नज़र नहीं आता। ये एक बहुत, मैं आपको प्रैक्टिकल जो है वो अपना व्यू पॉइंट दे रही हूँ, क्योंकि देखें, अपने मुल्क में कारोबार ज़िंदगी रोक देने से, ठीक है, सिंबॉलिकली आपने जो है उनको पैगाम पहुंचाना है। करोड़ों लोग बाहर निकले घरों से, क्या करोड़ों लोग घर से बाहर निकलेंगे, ये हमें देखना है। अगर निकलते हैं तो फिर भी कोई मैसेज नहीं जाता मेरा नहीं ख्याल। देखें, आपने जब ये स्टेप उठाया गया 5 अगस्त को, उसके बाद से लेकर अब तक जो कुछ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमें उसका फॉल आउट नज़र आ रहा है, जो स्टेप इंडिया ने उठाया, वो पाकिस्तान के हक़ में इनकरेजिंग नहीं है। वो हमें टिल्टेड नज़र आता है इंडिया की जानिब, जिसमें हमें नज़र, क्योंकि उन्होंने अपनी जो डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स थी वो बहुत अग्रेसिवली स्टार्ट की एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की तरफ से। ये प्रोटेस्ट बिल्कुल अपनी जगह पे शायद पाकिस्तानियों के लिए अहमियत का हामिल ज़रूर होगा और इसे ज़रूर होना चाहिए, लेकिन हमें करना चाहिए था ज़्यादा एफ़र्ट डिप्लोमेटिकली। हमारे प्राइम मिनिस्टर को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरह बहुत ही एग्रेसिवली इंटरनेशनल लेवल के दौरों पे जाना चाहिए था, जो कि मुमकिन नहीं है इस वक्त बिकॉज़ ऑफ द इंटरनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, जिस क्राइसिस से हम खुद गुज़र रहे हैं। तो उसे पहले दुरुस्त करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए शायद इमरान खान साहब डिप्लोमेटिकली उतना एफ़र्ट नहीं कर पाए। शाह महमूद कुरैशी साहब ज़रूर गए, लेकिन वो सिर्फ चाइना गए, बाकी जगहों पे उन्होंने फ़ोन कॉल्स किए हैं। लेकिन हमने उसके बरक्स इंडिया की तरफ से जो देखा वो ये था कि उन्होंने आई थिंक मोर देन प्राइम मिनिस्टर ने उनके 20 कंट्रीज़ एंड उनका जो फॉरेन ऑफिस का अमला है, उन्होंने 40 कंट्रीज़ का दौरा किया है। हमने नहीं किया है। ठीक है। और हमें क्या इम्पैक्ट नज़र आया? हमें कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आया, क्योंकि जो दुनिया की अप्रोच है वो प्रैक्टिकल अप्रोच है। उन्होंने इस वक्त मज़हब को और देखें, इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं वो प्रैग्मेटिक रिलेशंस होते हैं, प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स पे यकीन रखते हैं, जो इस वक्त इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस पर मबनी हैं। वो जज्बातियत को एक तरफ रख देते हैं इन तमाम मामलात में। इंडिया के साथ उनकी मोर देन $100 बिलियन की जो है वो ट्रेड है। पाकिस्तान के इज़ नॉट अ ट्रेडिंग पार्टनर, इंडिया इज़ अ ट्रेडिंग पार्टनर। पाकिस्तान तो जब भी जाता है, इवन गल्फ़ कंट्रीज़ में जिनको हम रिलीजन की बेसिस पे अपना उम्मा का जो है वो भाई समझते हैं, हम उनके ट्रेडिंग पार्टनर नहीं हैं, हम उनके पास बेल आउट्स के लिए जाते हैं, विच मीन्स हम उनसे पैसे मांगने जाते हैं। तो आप फ़र्क देख सकते हैं ट्रेडिंग पार्टनर का और जो एक बेल आउट लेता है, और वो हमें बड़े वाज़े तौर पर नज़र भी आया है। तो हमें चाहिए कि पहले हम ऐसे बन जाएं कि दुनिया हमारी बात सुने। इंडिया की क्यों, हालांकि इंडिया ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इल्लीगल तरीके से एक एरिया के ऊपर, इस वक्त, मैं पहले नहीं कहा करती थी कश्मीर को ऑक्यूपाइड कश्मीर, मैंने हमेशा, क्योंकि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर था,
बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन 370 जो आर्टिकल था उसने उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था। लेकिन मैं उसको ऑक्यूपाइड कश्मीर बिल्कुल कहती हूँ, क्योंकि अब उस पर वाकई ही कब्ज़ा हो गया है और वहाँ काबिज़ फ़ौजें इंडिया की जो है, अब वहाँ जो फ़ौज मौजूद है वो काबिज़ फ़ौज है। तो पाकिस्तान को ये अच्छा है, बहुत अच्छा है इससे, लेकिन इससे मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान कि आवाम में शायद कुछ थोड़ा सा वो हो जाए, लेकिन उसका जो है प्रैक्टिकली आवाम तो पहले भी कश्मीर करती रही है। तो बजाय इंटरनेशनल कम्युनिटी से सपोर्ट लेने के आप अपनी कंट्री से सपोर्ट, ये वो लग रहा है कि आपके पास अब कुछ नहीं बचा, दुनिया ने आपको कोई सपोर्ट नहीं दिया, अच्छा चलो मेरे अपने लोग तो मुझे सपोर्ट कर लें। सो ये अच्छा, लेकिन आई थिंक वी शुड डू दिस, अच्छी बात है, मगर हर चीज़ मत रोक दें। रेलवे आई डोंट नो क्यों रोक रहे हैं, ट्रेनें नहीं रुकनी चाहिए, नहीं रुकनी चाहिए, कारोबार ज़िंदगी से आपको नुकसान होगा। सही है। सर मैं सब आप ये बताइए कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है इस वक्त जो हम देख रहे हैं, क्या किसी कदर ये माजी से बहुत बेहतर है? हमें नज़र आता है कि क्योंकि सबीन साहिबा के मुताबिक अभी भी हम उन टारगेट्स को नहीं टच कर सके हैं जो होने चाहिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस वक्त है वो पिछली तमाम 10-15 साल से जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी उनसे बेहतर है। अगर ये जो खारजा पॉलिसी अभी शुरू की गई है, अगर ये उसको कंटिन्यूस रखते, जो जनरल ज़िया-उल हक़ के ज़माने के बाद से, ये 1988 के बाद से भी ऐसी रहती तो शायद आज हम किसी नतीजे पे पहुंचे होते। इससे पहले कश्मीर इशू को बिल्कुल डिस्कस नहीं किया जाता था, उसे बिल्कुल पीछे डाल कर रखा रहा, और काफ़ी साल ये जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने इसको देखा जी ये एक करारदाद पड़ी हुई है यूएनओ में और वहाँ से किसी दिन फैसला हो जाएगा तो कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाएगा या इंडिपेंडेंट हो जाए, बस उसके ऊपर ये रखे रहे, कभी इन्होंने कोशिश नहीं की। ऑन द अदर हैंड इंडिया वाले, इंडियन गवर्नमेंट और जो भी गवर्नमेंट आई है और उसके अलावा जो इंडियन इंतज़ामिया है वो मुसलसल इस चीज़ पे लगे रहे कि किस तरह से ये कश्मीर को हम इशू को हल किया जाए। सर एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे से वापस आने दें, फिर अब यहीं से शुरू कीजिएगा और फिर इस हवाले से सबीन साहिबा भी कुछ कहना चाहती हैं, उनकी राय भी शामिल करेंगे। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। कि हमें मंजूर नहीं है, चाहे हमें अपनी जानें भी कुर्बान क्यों ना करने पड़े। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। वक्फे से पहले मेरे साहब से हम बात कर रहे थे। सर आप बता रहे थे कि कश्मीर इशू को आज से पहले कभी इस तरह हाईलाइट नहीं किया गया और उसके साथ साथ हम सिर्फ यही सोचते थे कि यूएनओ से जब कभी फ़ैसला होगा तो वो सामने आ जाएगा। इतनी कभी कोशिश नहीं की गई थी, कभी गवर्नमेंट की जानिब से और आवाम की जानिब से भी कभी ये जज्बा सामने नहीं आया। मैं चाहता हूँ प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए आप जो कहना चाह रहे थे। जी मैं ये कह रहा था कि इसको इतने साल ठंडा रखा गया इस इशू को और हमारी तमाम अतराफ़ से इसको ठंडा रखा गया और जो इंडियन जो गवर्नमेंट थी या इंडियन जो इंतज़ामिया थी उन्होंने इसको इसके अंदर अपना होमवर्क जारी रखा और वो करते रहे और साथ में अपनी इकानमी को वो सही करते रहे। आज आप जैसा कि बताया कि वो पूरी दुनिया में वो ट्रेड कर रहे हैं। अभी उस दिन मोदी साहब जो थे उन्होंने बहरीन में
اور اس کے علاوہ UAE میں جا کے اپنی کمیونٹی سے جو انہوں نے ایڈریس کیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن سے وہ بات کر رہے تھے، اور کیا بات ہو رہی تھی وہ ساری میں نے سنی ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے جو جو پولیٹیکل لیڈر گزرے ہیں، انہوں نے ایسے جا کے باہر کے ملکوں میں ایسے کوئی کام نہیں کیا کسی سٹیج پہ بھی، نہ UNO میں اس پہ کوئی بات، ایک کشمیر کمیٹی بنا دی جاتی تھی، اس کا ایک چیئرمین ہو جاتا تھا، اور جو بھی ہوتے تھے وہ ان کی پرفارمنس پورے عرصے میں زیرو رہی۔ وہ اپنے جو ان کو جو سہولیات تھی، جو ان کو پروٹوکول تھا، وہ بس اس کے لیے وہ بیٹھے رہے۔ کسی سٹیج پہ بھی کوئی بھی کشمیر کے لیے کام نہیں کیا گیا۔ اب یہ کام ابھی اگر شروع ہوا ہے اور اس کو انٹرنیشنل لیول پہ پہنچایا گیا اور پہنچ رہا ہے، یہ 2 دن کی بات نہیں کہ 2 دن میں یہ انٹرنیشنل لیول پہ پہنچ جائے گا اور آگے سے انٹرنیشنل لیول سے کال آ جائے گی جی اوکے کشمیر کو آزاد کر دیں۔ ایسے نہیں ہوگا، اس میں وقت لگے گا بہت زیادہ، اس طرح سے جائیں گے۔ باقی جہاں تک وزیر اعظم صاحب کی جو کوششیں ہیں وہ نظر آ بھی رہی ہیں، انہوں نے سری لنکن اور نیوزی لینڈ کے جو ہم منصب ہیں ان کو فون پہ رابطہ بھی کیا ہے، اور ان کے ساتھ انہیں یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ بھارت کس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے کشمیر میں۔ اچھا، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ جو کہہ رہے ہیں کہ جو خارجہ پالیسیز ہیں وہ پہلے سے بہتر ہوئی ہیں، ذرا شارٹلی اس کو بتا کے یہ بتائیے گا کیا کشمیری جو اس ایک آزادی کی جو ایک جنگ لڑ رہے ہیں، کیا ان کی صفوں میں اتحاد ہے؟ وہ آپس میں سارے متحد ہیں ایک کاز کے اوپر؟ پہلے میں ان کو رسپونڈ کر دوں۔ بہت احترام کے ساتھ میجر صاحب سے میں اختلاف رکھتی ہوں اس معاملے میں کہ ہماری خارجہ پالیسی اگر بہتر ہوتی تو آج ہمیں انٹرنیشنل سپورٹ ہوتی۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، بالکل نہیں، میں تو ابھی چند ماہ کی بات کر رہا ہوں کہ جس سٹیج پہ پہنچی ہے اس طرح کبھی بھی نہیں تھی، بالکل ہماری خارجہ پالیسی بالکل بہتر نہیں تھی۔ Can I start now? Yes, please. Okay. Again, تھوڑا اختلاف رکھتی ہوں میں بڑے احترام کے ساتھ۔ اگر ہم 99 سے پہلے، کرگل سے پہلے دیکھیں، نواز شریف کا زمانے میں تھوڑا سا پہلے، تو ہم شاید ہماری جو وہ ہے بہت یادداشت بہت کم ہے ہماری۔ کیا واجپئی صاحب خود چل کر پاکستان نہیں آئے تھے؟ کیا ان کا جو ہے، کیا وہ کامیاب خارجہ پالیسی نہیں تھی؟ ٹھیک ہے، وہ بہت غلطیاں کی PMLN نواز شریف کی گورنمنٹ نے، بٹ وہ ایک سویلین سیٹ اپ تھا، اور انہی کی ایفرٹ سے یہ ممکن ہوا تھا کہ آپ کا آرچ رائیول، آپ کا نیوکلیئر رائیول چل کے خود آپ کے پاس آیا تھا، اور اباؤٹ ٹو سائن اے ڈیکلیریشن جب کرگل کا کانفلکٹ سٹارٹ ہوا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا یونائٹڈ نیشنز کے اندر نواز شریف صاحب نے ہی کشمیر ریزولوشن پیش کیا تھا جو بہت پریگمیٹک تھا، جس کے اوپر ان کے خلاف بہت ساری پاکستان کے اندر جو ہے وہ مہم شروع ہوئی تھی کہ ہیز اے سیل آؤٹ، جبکہ وہ بہت پریکٹیکل تھا، وہ میں آپ کو بہت بریفلی بتا دوں گی۔ اس کے بعد ہمیں جب مشرف صاحب نے ان کی حکومت کا تختہ الٹا، ملٹری ڈکٹیٹر صاحب نے، تو ہمیں ان کو میں کبھی بھی سپورٹ نہیں کروں گی، لیکن انہوں نے جو کشمیر کا فارمولا پیش کیا تھا وہ بہت پریگمیٹک تھا، تو اس کے اوپر بھی بہت لے دے ہوئی تھی۔ تو کیا یہ ایفرٹ نہیں تھی؟ مشرف صاحب بھی انٹرنیشنلی جاتے تھے۔ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں جو فورن پالیسی تھی ہماری، وہ بہت اچھی فورن پالیسی تھی۔ وہ شاید واحد بھٹو خاندان کے حکمران تھے، بے نظیر بھٹو اور بھٹو، جن کی باقاعدہ، جن کا نام لے کے جب میں پاکستان سے باہر جاتی تھی تو مجھے کہا جاتا تھا، جب میں کہتی تھی میں پاکستان سے ہوں تو او یو آر فرام اے بھٹوز کنٹری۔ دیٹس کامیاب دیٹ از ویری سکسیزفل فورن پالیسی کہ آپ کے سویلین لیڈر کا نام لوگوں کو معلوم ہے۔ تو ایفرٹس بہت زیادہ پہلے ہوتی رہی ہیں،
बिल्कुल होती रही हैं। ठीक है। और वो उसकी कुछ मैंने चूँकि ब्रीफ चाहिए, अभी बहुत सारी और भी हैं लेकिन मैं ब्रीफली सही आपको है, एक उसका दो रुख बता थोड़ा दी। सा बदला है क्या? और नहीं बदला, हैशटैग कश्मीर के लिए जो है डिटीरियोरेट हुआ है, डिटीरियोरेट हुआ Okay. है, क्योंकि मैंने आपको बताया हम इस वक्त चूँकि टाइम भी बहुत 1 साल ही हुआ है, हम सिर्फ हाथ फैलाने गए हैं। तो ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये तो बेल आउट लेने आप जा रहे हैं क्योंकि आपका मुल्क क्राइसिस के अंदर है, इकोनॉमिक क्राइसिस में है। सिर्फ जो हमें इस वक्त सपोर्ट नज़र आती है वो नज़र आती है चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर तीसरा फरीक है जिसके एरिया के ऊपर इंडिया ने कब्ज़ा वहाँ भी कर लिया है, लद्दाख। उसने लद्दाख के ऊपर भी जो है उसको भी यूनियन टेरिटरी के अंदर चेंज कर दिया। इंडिया चाइना की ट्रेड है आपस में? जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल है। और वो भी इतना अग्रेसिवली नहीं आया, वो आया इसीलिए है क्योंकि लद्दाख के ऊपर अटैक हुआ है, लद्दाख के ऊपर कब्ज़ा हो गया जो उसकी टेरिटरी है। तो उस पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, जिसके बाद फिर पाकिस्तान को भी उन्होंने सपोर्ट किया। और ये चाइनीज़ एफर्ट्स थी, माइंड यू, लेट मी करेक्ट एवरीबडी व्हाट इज़ हैपनिंग, जो मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है, इट वाज नॉट पाकिस्तान्स एफर्ट कि सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का इशू जो है वो पहली मरतबा इजलास बुला। इट वाज चाइना, क्योंकि चाइना इज़ दी, वो जो 5 परमानेंट वीटो यील्डिंग मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें से एक की सोवरेनिटी के ऊपर दूसरे वीटो यील्डिंग कंट्री ने अटैक किया है। दैट इज़ वाई इट वेंट इनटू द सिक्योरिटी काउंसिल। और फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट इसलिए किया है ऑब्वियसली क्योंकि हिस्टोरिकली रीजनल मामलात में चाइना पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट सपोर्ट करता रहा है। सो दैट इज़ दी ओनली प्लेस जहाँ हमें पाकिस्तान से सबको के लिए सपोर्ट नज़र आती है, और पाकिस्तान को उसको जितना मैक्सिमाइज़ कर सकता है वो करना चाहिए। सही। अच्छा सर ये बताइए कि लाइन ऑफ कंट्रोल की जो सूरत हाल है वो भी कुछ अच्छी नहीं है, वहाँ पे तो एक जंग का आलम हमें नज़र आता है, जंग तो चल ही रही है वहाँ पे, क्योंकि फायरिंग का तबादला हो रहा और वहाँ लोग जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, इधर से उधर से भी जो है वो लोग मर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में एंटी बैलिस्टिक जो मिज़ाइल का इन्होंने एक कामयाब तजुर्बा किया है, उस हवाले से थोड़ा सा बताइए कि इससे क्या एक सपोर्ट मिलेगी एक लड़ाई के इस माहौल में, और उसके साथ साथ क्या ये जो मामला चल रहे हैं लड़ाई वाले, ये यहाँ पे ख़त्म होंगे या आगे ये और बढ़ेंगे? आपका तजुर्बा क्या कहता है इस हवाले से? ठीक है जी, जो बैलिस्टिक मिज़ाइल ये जो अभी कल जिसका तजर्बा किया गया है, ये बेसिकली ये नाइट टाइम में वार हेड को ले जाने के लिए, और जिसकी रेंज 290 किलोमीटर तक है, जिसमें हर किस्म का वार हेड ले जाया जा सकता है। और रात के वक्त ये एक कामयाबी है पाकिस्तान की। पहले तो दिन वाले थे, जितने भी मिज़ाइल थे हमारे पास, उनको दिन के वक्त जो वार हेड को ले जाया जा सकता है, तो वो और दूसरे इसकी रेंज इतनी है कि ये अगर पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पे इसको कहीं भी इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी जो हमारी एनिमी कंट्री है उसके अंदर दूर तक ये मार करता है। तो ये जो हथियार ऑलरेडी मौजूद हैं अपने मुल्क के पास, उसमें एक इजाफा है, अच्छा इजाफा है। मगर हथियारों से काम नहीं होता। ये जो कश्मीर का इशू है, इसके साथ इन मिज़ाइलों का या किसी भी न्यूक्लियर पावर होने का ये कोई लिंक करना अच्छी बात नहीं है। क्यों कि आप देखें कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अपने आप को मनवाया है, एक सुपर पावर रशिया को निकाला है। उनके पास हथियार नहीं थे, जज्बा था, उनको आज़ादी चाहिए थी। इसी तरह और जितने भी ममालिक जहाँ भी आज़ादी की इशू उठे हैं, वहाँ पे जज्बा चाहिए होता है। वहाँ पे इतने हथियारों से काम नहीं हुआ और वहाँ पे आज़ादी मिली है लोगों को। दूसरे जितने भी मुल्क देख लें, जितनी भी पुरानी चीज़ें देख लें, और अब कश्मीर के ऊपर जो अभी इनको इंडियन ने अभी जो 5 अगस्त को ये इसको इसका जोग्राफिया बदलने की कोशिश की है, उससे एक तक़वियत मिली है उन इंडिया के अंदर जो रियासतें हैं जो अपनी इंडिपेंडेंस चाहती हैं। तकरीबन
28 के करीब ऐसी रियासतें हैं कि जो भी आज़ादी चाहती हैं। उनके अंदर भी अब थोड़ा सा ये हुआ कि कल को हमारी जो हमारे ऊपर वो एक किस्म का एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिया का है हिस्सा, वो हमारे ऊपर भी उस तरह से कब्ज़ा करके हमें भी अपने अंदर शामिल ना कर लिया जाए। नागालैंड है, आसाम है, त्रिपुरा है और बहुत सी हैं, तो उनको भी ये चीज़ मिली है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल तो अपनी जगह पे, मगर ये एक जज्बा चाहिए। बिल्कुल सही है सर। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो इसी मौजू पर बातचीत का सिलसिला बिल्कुल हम जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। कि हमें मंजूर नहीं है, चाहे हमें अपनी जानें भी कुर्बान क्यों ना करने पड़े। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के इस हिस्से में। और मेरे साथ मेहमानों में सबीन आगा साहिबा मौजूद हैं जो कि एक सहाफ़ी हैं, और उनके साथ साथ मेजर रिटायर्ड खुर्शीद साहब, अनवर खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, वक्फे से पहले बात हो रही थी मेजर साहब से भी, तो मैंने आपसे भी एक सवाल किया था, उसका एक हिस्सा रह गया था कि कश्मीरी जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, क्या वो अपनी सफ़ों में मुत्तहिद हैं? जी बिल्कुल। देखें, इस वक्त जो हमें नज़र आता है कश्मीर के अंदर रेजिस्टेंस जो मौजूद है वो कम्प्लीटली इंडिजिनस है, जिसका मतलब है वो खुदरो है। वो वहाँ के जो लोकल कश्मीरी लड़के हैं, जो कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंडियन ऑक्यूपेशन से तंग आ गए हैं, इंडियन जुल्म से तंग आ गए हैं। और जैसे हमें बुरहान वानी की एग्ज़ाम्पल हमारे सामने बिल्कुल मौजूद है, जो कि बहुत यंग लड़का था और वो बैटल फील्ड के अंदर एक्टिव भी नहीं था। वो सोशल मीडिया के, उनका सोशल मीडिया वॉरियर था। उसको जब उन्होंने मारा तो एक हमें सडन अपसर्ज नज़र आई मिलिटेंसी के अंदर। और इस वक्त मैं उस मिलिटेंसी को एज अ जर्नलिस्ट भी और एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और एज ए कॉमन ह्यूमन बीइंग भी बिल्कुल लेजिटिमेट समझती हूँ। और ये यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के अंदर भी मौजूद है कि जब आपके मुल्क पे किसी काबिज़ फ़ौज का किसी दूसरे मुल्क का ज़बरदस्ती कब्ज़ा हो जाए, तो उस कब्ज़े से छुड़ाने के लिए वहाँ जो इंसानी हुकूक की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है या उनके जो हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं उस काबिज़ फ़ौज या उस काबिज़ मुल्क की तरफ से, तो उसके ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए, अपने हुकूक के लिए जंग लड़ने के लिए असलहा उठाना अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस चार्टर लेजिटिमेट होता है, वो लीगल होता है और वो जायज़ होता है। तो इस वक्त जो वहाँ पर मिलिटेंसी है उसमें हमें बिल्कुल वो एक पेज पे नज़र आती है, और उसमें हमें यूनिटी और बहुत ज़्यादा अग्रेशन भी नज़र आता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक कदम उठाया गया है जो ऐसे मुल्क की तरफ से जो ऑलरेडी वहाँ पर जिसकी हुकूमत मौजूद थी। क्योंकि जब हम आर्टिकल 370 की बात करते हैं तो उसको यूनिलैटरली जो है, यानी एक ही फरीक ख़ुद से ख़त्म नहीं कर सकता है। इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 को वायलेट किया है, इंडिया ने इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स को जो है वो वायलेट किया, पाकिस्तान के साथ बायलैटरल ट्रीटीज़ को वायलेट किया। इन तमाम चीज़ों से बढ़ के उसने कश्मीरी अवाम के साथ जो है वो उनके साथ जो है वो बददयानती की है और झूठ बोला है। और उनके साथ ये, क्योंकि पिछले 1 साल से वहाँ पर कोई भी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं है, वहाँ पे इंडियन
इंडिया की जानिब से जो है वो गवर्नर रूल लगाया गया और वहाँ पर जो गवर्नर मौजूद हैं वो भी इंडिया के ही हैं। तो उन्होंने कश्मीरियों से ना पूछा है, ना पाकिस्तान से जो है इस हवाले से कोई गुफ्तगू की, और एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाल के अपना जो इलेक्शन का उनका एक वादा था उसको पूरा करके दिखा दिया है। पाकिस्तान, मुझे ऐसा, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ज़रूर करना चाहूँगी, मुझे अगर थोड़ा सा टाइम दें। ये जो हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कश्मीर इशू पर, लेट्स कम एंड टॉक अबाउट व्हाट कैन बी डन। और ये जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान की तरफ से नारा लगाया जाता है, मुझे ऐसे लगता है कि हमें इसको अबैंडन कर देना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है। क्यों? उसकी वजह ये है कि देखें, इससे शायद पाकिस्तान की ईगो को तो बहुत फ़ायदा पहुंच रहा होगा, लेकिन अमली तौर पर हमें कश्मीर को फ़ायदा होता इसका नज़र नहीं आ रहा है, और अमली तौर पर इसका फ़ायदा हमें मोदी गवर्नमेंट को होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट का हमेशा से यही स्टांस रहा है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है, और कश्मीर के अंदर भी जो है बिलवास्ता और बिलावास्ता मुदाखलत करता रहता है। तो ये जो जुमला है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इससे मोदी के गवर्नमेंट के उस नैरेटिव को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर करता है। सॉल्यूशन इसका ये अमली होना चाहिए, सिंबॉलिक नहीं होना चाहिए। एक सॉल्यूशन जो पेश किया था वो मुशर्रफ साहब ने किया था, जिसको मेरा ख्याल है शायद इतनी पजीराई इसलिए नहीं मिली पाकिस्तान की तरफ से क्योंकि उसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट थी। उसको अगर हम वन लाइन में देखें तो वो ये था कि कंप्लीट फेज़ वाइज डीमिलिटराइजेशन ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल और जॉइंट सुपरविजन ऑफ कश्मीर, यानी उसमें उन्होंने एक पॉइंट था कंप्लीट डिमिलिटराइजेशन का, एक पॉइंट उसके अंदर ये था कि उसमें हम इंडिपेंडेंस की तरफ नहीं जाएंगे, हम उसको ऑटोनॉमस रखेंगे बट विद जॉइंट सुपरविजन। ठीक है। फिर उसके अंदर एक पॉइंट था कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल फ्री, उसका थर्ड पॉइंट था फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी LOC के दोनों जानिब बाहर इंडिया और पाकिस्तान लोगों की आज़ाद आमदोरफ्त। इस वक्त हमारे 3 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर, जिससे हम ट्रेड भी हो रही होती है और जो है लोगों की आमदोरफ्त भी होती है, और वो इस तरह के हालात में बंद हो जाते हैं। तो और उसका जो फोर्थ पॉइंट था, फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट था, वो था एक जो है वो म्यूचुअल मैकेनिज़्म हम तय करेंगे इन तमाम 3 स्टेप्स को जो है इम्प्लीमेंट करने। बिल्कुल है। देखें, इसमें हम रिलीजन को एक तरफ रख देते हैं, हम इस वक्त ईगोज़ को एक तरफ रखते हैं, मिलिट्री को एक तरफ रखते हैं, तो मेरे हिसाब से यही एक प्रैग्मेटिक सोल्यूशन है। ठीक है। जो कहते हैं ना टेबल पे जो बात हो रही है वो तकरीबन ऐसी ही बात हो सकती है, और जिसके ऊपर वो क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हमें नेगेट नज़र आई थी वेरी क्विकली। एक तो वो यूनाइटेड नेशंस का प्लेबिसिट शायद इसमें नहीं है क्योंकि जॉइंट सुपरविजन, दूसरे वो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जब जॉइंट सुपरविजन इसके अंदर आ जाती है, और हाँ, और तीसरा पॉइंट के उन्होंने इसमें से जो रिलीजन का पार्ट है कि रिलीजन की बेस पे, तो वो तो हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं कि रिलीजन तो कभी भी यूनिटी का नहीं बना। ईस्ट पाकिस्तान आपसे अलग होकर बांग्लादेश बन गया, तो ये मेरा नहीं ख्याल, तो मुझे वो प्रैग्मेटिक लगता है। सही। सर, आप क्या हल पेश करते हैं? आज जिस तरह एहतजाज के लिए भी आज कहा गया है लोग बाहर निकलने वाले हैं, और मुझे यकीन है कि आज बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलेंगे। आप क्या समझते हैं ज़रा इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं तमाम पाकिस्तानी अवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज 12 बजे आप निकलें अपने ऑफिस से, घरों से, हर जगह से निकलें, रोड पे खड़े हों और ये एहतजाज करें, ताकि ये इंटरनेशनल लेवल पे पता चले कि कश्मीर के साथ भी कोई लोग खड़े हैं। और ये जो इंटरनेशनल जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी और जो कश्मीरी कम्युनिटी वहाँ पे रह रहे हैं वो भी ये एहतजाज में हिस्सा लें, अपने अपने टाइम के मुताबिक, अपने अपने मुल्क के जो टाइम होता है उसके मुताबिक इस एहतजाज में पूरी दुनिया में इसमें हिस्सा लेना चाहिए, ताकि कश्मीरियों को भी पता चले कि पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात होगी कि इसके जो हल है, हल हमेशा हर चीज़ का एक हल जो होता है ना टेबल पे बैठ के होता है। मैं पहले भी कहता हूँ, लड़ाई किसी मसले का हल, लड़ाई किसी मसले का हल नहीं, मगर
اگر کوئی اتنا پرووک کرے تو پھر لڑنا بھی پڑتا ہے، اپنے آپ کو اپنے دفاع کے لیے بھی پڑتا ہے، اور دفاع کے لیے لڑنے کے لیے پاکستانی مسلح افواج کسی سے کم نہیں ہے، مگر ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے اور کبھی آئندہ بھی ایسے نہیں ہوگا کہ ہم اس کو ہم پہل نہیں کریں، پہل کبھی بھی نہیں کریں گے، مگر ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں بہت اچھی طرح۔ تھینک یو سو مچ میر صاحب، آپ تشریف لائے۔ سبین صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پروگرام کے پہلے حصے کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے، کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی، انشاءاللہ کشمیریوں پہ جو ظلم اور بربریت کی جو مثالیں قائم کر رہا ہے بھارت، وہ بہت جلد ختم ہوں گی اور کشمیری آزاد فضا میں سانس لے سکیں گے۔ ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے، وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہوں گے اور ہم ایک الگ موضوع پہ بات کریں گے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔